Welcome back, student. Today is the session 16 of NEET Physics, and the chapter is Laws of Motion. In this session, I have taken two questions which were asked in the previous year NEET and the CBSE examinations. So, ये जो question है, that is the question number one. I think it was asked in the NEET examination few years back, and this is the question which was asked in the CBSE pre-medical test examination. So let us solve the question number one. So in this question number one, it is written that a 5000 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second, and to give an initial acceleration of 20 meter per second square, we have to find the amount of gas ejected per second, which is needed to supply the necessary thrust. So this is the question, that is we have to find the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust for the vertical firing. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए लेट अस से मैं यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूँ. ये है, मान लीजिए एक रॉकेट है, ये इस प्रकार का रॉकेट है. जैसे ये लॉन्च पैड मान के चलिए, ये लॉन्च पैड है आपका. तो इसमें क्या है कि रॉकेट के अंदर आपके कंबस्टिबल फ्यूल होते हैं. सो एट द टाइम ऑफ फायरिंग, वो जब व्हेन दे स्टार्ट बर्निंग, सो दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट. ठीक है, इस प्रकार से वो आपके एग्जॉस्ट के फॉर्म में रिलीज होते हैं, एंड देयर डायरेक्शन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब इसमें लिखा हुआ है कि द एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ दिस combustible fuel, ठीक है, which is meant for vertical firing is 800 meter per second. ये downward direction है. Now this speed of this exhaust will provide the necessary initial velocity to the rocket. ठीक है, ये जो downward direction में exhaust की जो speed है 800 meter per second, that will provide the necessary lift, or you can say the necessary velocity to this rocket in the upward direction, or you can say that it is the initial velocity of the rocket will be equal to 800 meter per second. पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, मान लीजिए आपका एक रॉकेट है, जैसे ये रॉकेट बना हुआ है, तो ये जो रॉकेट है ना, इसका जो वेट है वो तो नीचे एक्ट करेगा. ठीक है, इसका जो लेट से इसका जो मास है, हम कहते हैं रॉकेट का, लेट से दिस इज m. ठीक है, तो इसका वेट जो है नीचे ऐड करेगा, विच इज इक्वल टू m इंटू जी. अब रॉकेट ऊपर कब जाएगा? द रॉकेट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन व्हेन द थ्रस्ट प्रोवाइडेड बाय दीज एग्जॉस्ट गैसेस इज मोर देन द वेट ऑफ दिस रॉकेट. दैट इज, थ्रस्ट हैज टू बी मोर देन द वेट ऑफ दिस रॉकेट. और यू कैन से that the net force जो है, ठीक है, will be equal to thrust minus the weight of the rocket. ठीक है, and this net force will be acting in the upward direction. ये इस direction में लगेगी, and this is the net force which will provide the necessary acceleration of 20 meter per second square. So I think everything is clear now. Initial velocity to the rocket is given 800 meter per second, and we have to give an initial acceleration of 20 meter per second square. ये initial acceleration हो गया. Then g की वैल्यू हमको लेनी है 10 meter per second square. Now the net force क्या है? That is equal to thrust minus the weight. Now thrust जो है, the formula for the thrust is minus u dot dm upon dt. ठीक है, वेयर dm जो है, हाँ सॉरी, इसको हम ऐसे कैपिटल नहीं स्मॉल m में लेते हैं, dm ले लेते हैं, ऐसे dm upon dt. So where dm upon dt is the rate of combustion of fuel. Rate of combustion of fuel. ठीक है, और
this can also be said that this is the amount of gas ejected. ठीक है, एक ही बात है, rate of combustion of fuel or the amount of the gas which is ejected from this rocket. So ये dm upon dt, this is what we have to find in this question. So u हमें पता है. अच्छा, यहाँ में माइनस साइन है. माइनस साइन का मतलब क्या है कि the direction of the thrust is opposite to the direction of these escaping gases. ये जो गैस जो escape कर रही है due to the burning of the fuel, so इसका डायरेक्शन नीचे है एंड थ्रस्ट ऊपर लग रहा है. सो द डायरेक्शन ऑफ द थ्रस्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एस्केपिंग गैसेस, और ये माइनस साइन उसी को डिनोट कर रहा है. सो फाइनली अब हमको क्या करना है, हमें थ्रस्ट पता है, हमको वेट पता है. सो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं. नेट फोर्स, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू this is equal to minus u dm upon dt minus ये आपको थ्रस्ट हो गया. ये दिस इज द वैल्यू ऑफ द थ्रस्ट विच इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो वेट कितना है मेरा, ये दैट इज इक्वल टू 5000 इंटू 10 विच इज इक्वल टू, हम ऐसे ही लिख लेते हैं अभी. Or we can do one thing, we can simply yeah ठीक है, we can just write it as 50,000. ठीक है, ये हमारा 50,000. so this is the weight, this is in newtons. so हमारा net force हो गया, and this net force will provide the necessary acceleration of 20 meter per second square. ठीक है, तो अब इसको हम इक्वेट कर देंगे. So net force is equal to, that is the mass, that is mass into the net this acceleration. acceleration कितना है मेरा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हमें चाहिए. ठीक है, this net force will provide the necessary acceleration of 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. so a की वैल्यू हमको पता है, that is 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, m हमको पता है, और हम इसको लिखेंगे माइनस that is equal to u dot dm upon dt minus 50,000. ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं फाइनली that minus u is equal to, ये हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो गया मेरा, this is equal to 5 to the 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4 plus 50,000 divided by not divided by, this is, ये हमारी वैल्यू आ गई. सो अब हमें यहाँ पे dm अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो dm अपॉन dt will be equal to, ये हो जाएगा आपका 50,000 एंड 1 लाख, दैट इज इक्वल टू 1,50,000. ठीक है ना, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 800. ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 750. फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 375. फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 हो जाएगा, 8 to the 16. ठीक है, एंड देन आ जाएगा 1714, 187.5. ठीक है, सो dm अपॉन dt की वैल्यू मेरी आ गई फाइनली. तो dm अपॉन dt is equal to 187.5 kg per second. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नाउ यहाँ एक चीज है, यहाँ पे जो माइनस साइन आ रहा है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, दिस माइनस साइन इज जस्ट टेलिंग यू दैट द डायरेक्शन ऑफ द थ्रस्ट इज opposite to the direction of the
दिस एस्केपिंग गैसेस. ठीक है. सो और ठीक है, ये तो आपको माइनस साइन का ये the minus sign is depicting that the direction of the thrust is opposite to the direction of the escaping gases, and ये जो वैल्यू है 187.5 kg per second is the amount of gas which is ejected per second. ठीक है, in order to provide the necessary thrust for vertical firing. ठीक है, so this is the answer, that is the correct answer is equal to, sorry, it's not 185. It's the answer is it's the correct answer is 187. Is one, so the correct answer is B. Sorry, it's not the correct answer is B and not C. ये है आपको 187.5 kg per second. यहाँ पर आंसर मेरा है 187.5 kg per second. ठीक है. So this is how you have to solve this question, and the only important thing which you have to remember here is that the thrust, the necessary thrust provided for vertical firing is means this the necessary thrust for vertical firing is provided by the combustion of the fuel. ठीक है, and जब वो फ्यूल जलता है then what happens, this escaping gases, they provide the necessary initial velocity. ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी थ्रस्ट. ठीक है, अब वो जो थ्रस्ट है आपका, वो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज इक्वल टू माइनस यू डॉट डी एम बाई डी टी, वेयर डी एम अपॉन डी टी इज द रेट ऑफ कम्बशन ऑफ फ्यूल एंड यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट विच इज प्रोवाइडेड बाय द कम्बशन ऑफ द फ्यूल. ठीक है, और बाय द कम्बशन ऑफ द फ्यूल व्हाट हैपेंस, द गैसेस flow in the downward direction, and because of that flow the rocket gets the initial velocity. ठीक है, so हमने यहाँ से net force निकाल लिया, because thrust is more than the weight, तभी रॉकेट ऊपर जाएगा. so net force should be equal to thrust minus weight. thrust का ये फॉर्मूला था, weight आपको बता दिया, that is equal to m into g. so हमने यहाँ से net force को equate किया, that is equal to thrust minus weight किया. ठीक है, and then we got this equation, यहाँ पे आप देखेंगे, that is equal to minus u dm upon dt हो गया, and dm upon dt is the amount of gas which is ejected per second. ये हो गया, तो यहाँ से हमने निकाल दिया. माइनस साइन का जो सिग्निफिकेंस वो बता दिया कि दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द थ्रस्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एस्केपिंग गैसेस. तो मेरा करेक्ट आंसर है बी, ऑल्टरनेटिव बी, दैट इज 187.5 kg per second. Now let's move on to the second question. The second question में क्या लिखा हुआ है, ये दो masses हैं, these two masses are connected by an inextensible string and they are passing over a frictionless pulley. ये आपका पुली है, this is a pulley. ठीक है, और so what we have to find is we have to find the acceleration of the masses when the masses are released. ये 5 kg का मास है, ये आपका 10 kg का मास है. So this is a so what will happen when we, let's say we are right now just holding it. ठीक है, जैसे हम इसको छोड़ेंगे what will happen, ये मास नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, because it is heavier, ये ऊपर जाएगा. so acceleration for this mass will be in the upward direction, and the same acceleration will be in the downward direction for this mass. ठीक है, ये हो गया. अब इसका ये जो फिगर है मैं यहां बनाता हूं. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. ये आपका 5 kg का मास है, ये आपका 10 kg का है. इसको हमने m1 से डिनोट किया है, इसको हमने m2 से किया है. नाउ व्हेन दीज टू मासेस व्हेन दे आर रिलीज्ड, देन वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, g है, g/2 है, g/3, एंड g क्या, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड, दिस इज अ हेवियर मास. So what will happen, this will go down,
ये आपके नीचे की तरफ जो है दिस विल मूव डाउनवर्ड, मतलब इस प्रकार से ये वाला मास ऊपर जाएगा, ये वाला मास नीचे जाएगा। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो गया, ये वाला मास नीचे जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन नीचे हो गया, ऐसे हो गया। दिस इज एन फ्रिक्शनलेस पुली एंड ये दिस इज एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक जो है M1, ये ऊपर कब जाएगा? अच्छा इसमें क्या है, ये एक स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन डेवलप होगी। टेंशन ऑलवेज acts away from the body. This is the important thing which you have to understand or you have to learn. Tension always acts away from the body. So away from the body का मतलब है कि इस मास के लिए टेंशन ऊपर लगेगा, इस मास के लिए टेंशन ऊपर लगेगा, ठीक है। इस मास के लिए टेंशन ऊपर लगेगा, इस मास के लिए भी टेंशन ऊपर लगेगा। इसका वेट नीचे जाएगा M1G और इसका वेट जो है नीचे लगेगा, दैट इज M2G, ठीक है। वेट तो नीचे लगना है, चाहे इसका भी वेट नीचे लगेगा, इसका भी वेट लगेगा, बट टेंशन जो है इट विल बी, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, मीन्स इसके ये बॉडी है ये ऊपर लगेगा और ये भी आपका दूसरा 10 kg का मास है, तो इसका इसके ऊपर जो टेंशन है उसका डायरेक्शन ऊपर होगा, दैट इज away from the body. So this block M1 will move in the upward direction. M1 will move in the upward direction कब? M1 will move in the upward direction when T, that is the tension in the string, is more than M1G. ये जो वेट नीचे लग रहा है, ये जो वेट नीचे लग रहा है, इससे ज्यादा टेंशन होगा तभी ये मास ऊपर जाए, बिकॉज ये वाला जो फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स, ये फोर्स जब ऊपर वाले की, ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है दैट इज टेंशन, वो जब आपका ये वेट जो कि नीचे लग रहा है इससे ज्यादा होगा तभी तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो M1 will move in the upward direction when this tension in the string is more than the weight of this body, that is net force इसके ऊपर क्या होना चाहिए, T minus M1G, और ये net force जो है that will provide the necessary acceleration which is equal to क्या होगा, A है, अगर हमने इसको A लिया है, so this net force will provide the necessary acceleration. So what we can do is, this is the net force हो गया, and net force is also equal, force is equal to mass into acceleration. इसका मास कितना है हमारा, that is equal to 5 kg है, 5 into A। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। और वी कैन राइट m की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, t माइनस m1 इज 5 g विच इज इक्वल टू 5a, ये पहली इक्वेशन होगी। और वी कैन से t इज इक्वल टू 5a प्लस 5g, फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं इसके ऊपर, ये वाला मास नीचे कब जाएगा, ये तब जाएगा जब इसका वेट जो है टेंशन से ज्यादा होगा। वेट नीचे है, टेंशन लग रही है ऊपर, तो जब इसका वेट इज अ फोर्स, तो ये जब डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से ज्यादा होगी तो ये वाला ब्लॉक जो है वो नीचे जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इन द केस ऑफ ब्लॉक M2, दैट इज वेट इज M2G minus T, this is the net force on this block in the downward direction, ठीक है। this block is moving downward, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो नीचे ये तब जाएगा जब weight is more than this tension। जब weight ज्यादा होगा टेंशन से तो net force downward direction में लगेगी, ठीक है। and that net force, ये net force will provide the acceleration A। so net force is equal to mass into acceleration, तो ये हो जाएगा आपका M2A, लिख लेंगे। और वी कैन से M2 कितना है मेरा, ये है 10 kg, 10g हो गया, माइनस T इज इक्वल टू M2 कितना है, ये 10 है, तो डी दैट इज इक्वल टू 10 है। सो वी कैन राइट हियर दैट T इज इक्वल टू 10g माइनस 10 है। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये एक फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। सो अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके वी कैन फाइंड द acceleration of the masses in terms of g।
वो कितना होगा, हम यहां से टी निकाला हमारा 5a प्लस 5g, और यहां से टी निकाला 10g माइनस 10a, ठीक है ना। ये जो टी है मैंने इधर ले लिया और 10a को इधर ले लिया, तो 10g माइनस 10a हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 10g माइनस 10a, ठीक है। बिकॉज दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड ये दोनों इक्वेशन, ये यहाँ पे से टेंशन हमारी निकल के आई 5a प्लस 5g, यहाँ से निकल के आई 10g माइनस 10a, तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक है ना। t इज इक्वल टू यहाँ पर इज इक्वल टू दिस, एंड t इज इक्वल टू दिस दिस 10g माइनस 10a है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 5a प्लस 5g है, एंड दिस t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग है, तो दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट किया, तो यहाँ से आंसर क्या निकलेगा मेरा, 5g ये है, 10g है, 5g को मैं उधर ले जाता हूँ तो हो जाएगा 5g इज इक्वल टू, ये 5a है और ये आपका 10 है, तो मैं इसको इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा 15a। सो इट इम्प्लाइज दैट a विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 15g, so that is equal to g divided by 3। so हमारा जो ये जो आपका the acceleration of these two masses will be equal to g by 3, that is the correct option is C, ठीक है ना। ये मेरा आंसर आ गया, a is equal to g by 3, ठीक है। So this is how this question has to be done. Again, physics is all about understanding the concepts of each and every chapter. हर चैप्टर के अंदर जितने भी आपके आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके लिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं, दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इजी, इनमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते देन डेफिनेटली यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। So this is all I have for this session number 16. So thank you very much for joining this session, and I hope you have understood the solution of both these two questions, and probably in the next session, that is in the session number 17, I will be moving on to the next chapter, that is the chapter of work, power and energy. तो वहाँ से, because probably I have tried to cover almost all the different types of questions which has been asked in the NEET and the CBSE examination. And in future also, if I get some more different types of problem, I will definitely be sharing it with you. But in this session number 17, I will be starting the question and answer session from the chapter of work, power and energy. So thank you very much for joining, and have a nice day. Bye.